Today, we have gathered here to celebrate the Republic Day of India, a day of great pride and honor of every Indian. On 26 January 1950, our Constitution came into effect and India became a sovereign democratic and republic. Republic Day is not only a celebration, but also a responsible of our duties as citizens of India. It inspires us to respect our Constitution. We are extremely honored to have with us today our chief guest, Professor Dr. Jasveera Minhas, former Vice Principal of Government College, Hoshiarpur. She has dedicated many years of her life to the field of education, and her experience and guidance are truly inspiring all of us. On behalf of the entire school, I extend my warm and heartfelt gratitude to you, ma'am, for being with us and making this occasion more meaningful. On this occasion, the students of our school have prepared a culture program. Please grant us permission to start the program. Thank you, ma'am. जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे रख कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज इस आज़ादी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी है और हमारे बच्चों की है, और इस जिम्मेदारी की शुरुआत एक स्कूल से होती है। इसी भावना के साथ पेश है हमारे बच्चों की पहली पेशकश, आओ स्कूल चले हम। से दुनिया के राज खुलते हैं, कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं, दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम।
at India today, it does not see just a nation. It sees a direction. एक ऐसी दिशा जो परंपरा से शक्ति लेकर आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर बढ़ रही है. On this Republic Day, let us reflect on how India is rising, not in volume but in value. Respected chief guest, principal, esteemed teachers, and my dear friends, a very good morning to one and all. Today, we gather not only to honor India's growing role on the global stage, but the responsibility of the young lives. India's leadership is defined not merely by power, but by purpose. From digital innovation and space exploration to climate action and global cooperation, India is shaping solutions and not just discussions. आज भारत केवल एक उभरती शक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नेतृत्व की पहचान बन चुका है. India's strength is reflected in its youth. With the world's largest young population, we carry responsibility. हम सिर्फ भविष्य के नेता नहीं हैं, हम आज के स्टेक होल्डर्स हैं. The values we practice today will help shape India for tomorrow. Our constitution teaches us equality, justice, liberty and fraternity, values that guide India's voice globally. सच्चा राष्ट्रभक्त वही है जो अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाए. From classrooms to society, nation building begins with us. On this Republic Day, let us pledge to think responsibly, act ethically and contribute positively. आइए एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो तेजी नहीं बल्कि सही दिशा में भी बढ़ रहा है. With this spirit, let us celebrate the Republic of India, rooted in its constitution and rising with purpose. जय हिंद. देश प्रेम वही संस्कृति पेश करेंगी हमारी स्कूल की छात्राएं अपने सम्मी नृत्य के द्वारा. सद पई मारा वे तू देस वसा लिया केड़ा हो गुलाम फरीदा होनुरे पर मनसा जेड़ा विछड़िया यार मिलावे, जेड़ा विछड़िया यार मिलावे. चन्ने दी चांदनी तारियां दी लोटोला, तू
ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿਕਰਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਕਰੇ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਛੜਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਕਰੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਵੇ ਢੋਲਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਵੇ ਢੋਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇ ਢੋਲਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਚਾਅ ਵੇ ਹਾਣੀਆਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੱਤਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੇ ਮਹਿਰਮਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੱਤਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸੰਮੀ ਮੇਰੀ ਵਣ ਊਠਾਂ ਦੇ ਗਲ ਟੰਗੀਆਂ ਨੀ ਸੰਮੀਏ ਸੰਮੀ ਮੇਰੀ ਵਣ ਊਠਾਂ ਦੇ ਗਲ ਟੰਗੀਆਂ ਨੀ ਸੰਮੀਏ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਸੁਰਮਾ ਨਿੰਮਾ 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 ਸੁਰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭਰ ਕੇ ਸਰਾਈ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭਰ ਕੇ ਸਰਾਈ ਸੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਟਿੰਮਾ ਟਿੰਮਾ ਸੁਰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਸੁਰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਰਾਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵੇ ਢੋਲਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਰਾਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵੇ ਢੋਲਾ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਤਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਤਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਤਾਨੇ ਵੇ ਰਾਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵੇ ਢੋਲਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਰਾਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵੇ ਢੋਲਾ ਸੰਮੀ ਮੇਰੀ ਵਣ ਸੰਮੀ ਤਾਂ ਚੜ ਗਈ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਸੰਮੀ ਮੇਰੀ ਵਣ ਮੁੜ ਵਤਨਾ ਵੱਲ ਵੱਲ ਸੰਮੀ ਆਵਣ ਢੋਲਾ ਟੁੱਟ ਸਾਵਣ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆੜਾ ਵੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾ ਮਾਨੇ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਆਵਣ ਢੋਲਾ ਟੁੱਟ ਸਾਵਣ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆੜਾ ਵੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾ ਮਾਨੇ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਆਵਣ ਢੋਲਾ ਟੁੱਟ ਸਾਵਣ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆੜਾ ਵੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾ ਮਾਨੇ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਨੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਚੱਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨਾਵਾਂ ਮੱਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕੱਲੀਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਰੂਹ ਨਾ ਜਾਣੇ ਬੰਦਾ ਢੋਲ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੁੜ ਸੀ ਭਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਚਾਲੇ ਫਿਰ ਲੈ ਸੰਮੀ ਦੀ ਚਾਂਜਰ ਛਣ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਸੰਮੀ ਦੀ ਚਾਂਜਰ ਛਣ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਡਰ ਡਰ Esteemed Principal Asapur Singh Ji, Vice Principal Madam, staff, students of Chaudhry Balbir Singh School, and yes, the managing committee and members of Chaudhry Balbir Singh. I am feeling not only very proud, I am feeling very honored to be here and to celebrate the 77th Republic Day of India here in Chaudhry Balbir Singh is a matter of great pride. Students, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗੀ? You want English? Hindi? Punjabi? बोलो. Which language? बताओ.
मदर टंग कौन सी है? पंजाबी, हिंदी? पंजाबी एंड हिंदी मिक्स्ड, ओके डन, मदर टंग। प्यारे बच्चों, थानू एक गल पता होनी चाहिए है, और ये शायद थानू तुसी सुनिया होना, पढ़ रहे होंगे कि ये साडा देश 1947 विच आज़ाद होया सी 15 अगस्त नूं, पता है? यस। उस आज़ादी का मतलब की सीगा कि ब्रिटेन दी हुकूमत साडे उपर सीगी, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ हुकूमत ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਾ ਪੇਟ ਪਰ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। इन्हां हालातों विचों निकल के 200 साल साडा देश गुलाम रहा, और जब इन्हां हालातों चों निकल के एक आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, एक आज़ादी की जंग शुरू हुई, तो तुसी ये नाम सारे सुने होने, साडे सारे जेड़े फ्रीडम फाइटर्स है उन्हां दे नाम सुने बेटे? आई एम श्योर सारे बच्चों ने शहीद भगत सिंह जी का नाम सुनिया होना, सुनिया? यस और नो? यस। वो कल्ले ही नहीं सीगे, होर बहुत सारे साडे फ्रीडम फाइटर्स सीगे जिन्हां ने अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन्हां दे नाम अज सानू पता भी नहीं है। शहीद भगत सिंह उन्हां हज़ारां लोकां चों एक इदां दे सीगे जिन्हां ने बहुत ज़्यादा पराक्रम दिखाया, और अफकोर्स सानू सारियां नूं उन्हां दे बारे पता है। इसलिए ये जिहड़ी आज़ादी सानू मिली है बच्चों, ये किते सौखी नहीं मिली। इट इज़ नॉट एन ईजी फ्रीडम। एंड तुसी रियलाइज़ करोगे कि रिपब्लिक डे की चीज़ है। असी 15 अगस्त नूं आज़ाद तो हो गए सीगे, पर हर आज़ादी दे कोई नियम हुंदे ने, कोई रूल्स हुंदे ने। किसी चीज़ के उपर ही कोई चीज़ चलती है। जिद्दां तुसी स्कूल आंदे हो तो तुसी जानते हो कि इन्ने बजे स्कूल जाना है, स्कूल के रूल्स है वो फॉलो करने हैं, हुंदा है कि नहीं? इसी तरह एक देश नूं चलाउण लई भी रूल्स है। तुहाडे घर दे भी कुछ नियम होने हैं। तुहाडे मम्मी कहंदे होने बेटे आ करना है, आ नहीं करना है, ठीक है ना? इस तरह ही देश के नियम लिखे गए, और वो नियम लिखण दे लई उन्हां नूं 2 साल लग गए, और इंडिया दी कॉन्स्टिट्यूशन 1948 विच तैयार हो गई सी। पर फिर आई एम सॉरी 1949 विच तैयार हो गई सी, और फिर भी उन्होंने वेट किया कि नहीं, असी 26 फरवरी 26 जनवरी 1950 नूं असी इस कॉन्स्टिट्यूशन नूं लागू करांगे, जिहड़ा अज दा रिपब्लिक डे है। और साडी कॉन्स्टिट्यूशन विच बहुत कुछ लिखा गया बच्चों, बहुत देश के नियम दिते गए, बहुत कुछ कहा गया, और कई चीज़ों ते असी पालन कर रहे हैं। सानू 76 ईयर्स हो गए हैं, असी इसी मेहनत ते लगे हैं कि देश तरक्की करे, देश अगे बढ़े, और साडे देश ने तरक्की की भी है बहुत ज़्यादा। ना कहते होया ईवन टुडे जिहड़ा थानू राइट टू एजुकेशन मिल रहा है, जिहड़ा बच्चों ने सब तो पहला प्रेजेंट किया, दिस राइट टू एजुकेशन सारियां नू नहीं मिल पाता बच्चों, थानू मिल रहा है। इसका खास फायदा उठाओ। जे तुसी सोचते हो कि तुसी अपने देश नू प्यार करना है, तुसी भी अपने देश लिए कुछ करना है, सोचते हो इस तरह? यस। और तुसी सोचते होंगे कि असी तो बहुत छोटे बच्चे हैं, असी की कर सकते हैं इस देश लिए, असी वड्डे होके कुछ करांगे, तो तुसी योर मिस्टेक। एक देश नू हर एक पद्धर ते, हर एक लैवल ते बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अगे वधन की लोड़ है, और थोड़ी बुनियाद, थोड़ी फाउंडेशन अज तो इस पल तो ही रखी जानी चाहिए है। उस बुनियाद विच की कुछ आना चाहिए है, ये थानू भी पता है, पर मैं जल्दी थानू दस दिंदी हां। सब तो पहला
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਹਾਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਟੁਮਾਰੋ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਏਬਲ ਬੋਡੀਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਟ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇ। ਬਿਮਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਿਪਸ, ਫਾਸਟ ਫੂਡਸ, ਮੈਗੀ, ਟੋਮੈਟੋ ਸੌਸੇਸ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? Why is it important to study? क्यों जरूरी है? कोई बच्चा दस सकता है? Anybody? Yes? You have a mic? To become so capable that India's future is never in danger as it is in our hands. Very good. To be very fit and to look after our responsibilities. Yes, bolo. To become so capable that India's future is never in danger. We have to stay fit and we have to make the maximum use of our right in the most positive way. Very good. Very good. She deserves a big round of applause. Yes, students, जिस तरह हुनी थोड़े हेड गर्ल ने दसिया सानू, एक मानसिक विकास, एक मैंटल डिवेलपमेंट थोड़ी बहुत ज़रूरी है कि तुसी अपने लिए सही गलत सोच सको। थानू ये पता चल सके कि तुसी सही की कर रहे हो और गलत की कर रहे हो। ये तो तुसी जब पढ़ोगे लिखोगे तो ही थोड़ा ब्रेन इन्ना शार्प हो जाएगा, दिमाग इन्ना शार्प हो जाएगा दैट यू विल नो इट। क्लास में बैठ के गल्लां कर लियां, क्लास स्किप करती, नहीं सुनिया चंगी तरह, यू आर नॉट सर्विंग योर मदरलैंड। तुसी इस देश की एक विद्यार्थी की सीट वेस्ट कर रहे हो, ये ना करना। ठीक है? क्लियर? मानते हो? यस और नो? बोलो। पढ़ेंगे सारे बच्चे ध्यान नाल? फिर उस तो बाद बच्चों आंदा है कि स्कूल में थोड़ा कैरेक्टर बिल्डिंग की जाती है, थोड़ी पर्सनैलिटी की बिल्डिंग की जाती है, थोड़ा व्यक्तित्व बनाया जाता है। अज साडे देश नूं बहुत चीज़ों की लोड़ है। साडा देश वो 4 मंत्री, ऑफिसर्स, आर्मी, फोर्सेस दे सिर ते चल रहा है इस टाइम, बट कल दा फ्यूचर, कल दा भविख तुसी हो। जे तुसी आज एक अच्छी फाउंडेशन क्रिएट करते हो तो ये देश बहुत जल्दी अगे तरक्की करके अगे निकल जाएगा। ऑलरेडी असी बहुत तरक्कीशील हैं, इसलिए आज तो मैं खाली थोड़ा 2 प्रोमिसेस लेके जाना चाहती हूँ। फर्स्ट प्रोमिस साडा एक कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन बनया सीगा, वी डिक्लेयर्ड आवरसेल्व्स एज अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है, की मतलब है डेमोक्रेसी का? एनी स्टूडेंट? थानू पढ़ाया गया होना सिविक्स विच, व्हाट इज डेमोक्रेसी? यस, क्विकली। यस बेटे, हाँ। ये माइक देना बेटा प्लीज, माइक जरूर दे। लोगों के द्वारा अपनी सरकार चुनी जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, ही इज ऑलमोस्ट राइट। आवर डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल का मतलब है लोगों द्वारा सरकार चुनी गई। फॉर द पीपल मीन्स लोगों लई सरकार चुनी गई। बाय द पीपल मीन्स लोगों लई एंड लोगों वास्ते चुनी गई। मीन्स हर जगह सरकार तुसी हो। इज दैट क्लियर? जे असी करेक्ट वोटिंग करते हैं, असी सही तरह की एक डेमोक्रेसी क्रिएट कर देंगे हैं, वो साडे लिए बहुत ज़रूरी है।
पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ। ਔਰ ਬੱਚੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਦ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਭੇਦਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੇਦਭਾਵ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਈ ਕਲਰ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰਾਈ ਕਲਰ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਮਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਮਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਮ ਮਦਰ ਟੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਮਦਰ ਲੈਂਡ, ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਾਓ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਵੱਛਤਾ, ਕਲੈਨਲੀਨੈਸ, ਸਫਾਈ। ਉਹ ਸਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਵੀ ਟੇਕ ਦ ਵੇਸਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਮੈਂਟਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਥਾਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੱਛਤਾ ਲੈ ਆਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ we are not going to dirty anything anywhere। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਊਬਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਵੇਟ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਵ ਦ ਡਿਗਨਿਟੀ। Dignity means the kind of character कि मैं भी साफ कर सकती हूँ। Why should I wait for someone else? जब साढ़े विच ये sense of cleanliness आ जाएगी, असी किसी तो पिछे नहीं रहांगे, क्योंकि अज भी साढ़े देश विच जिस चीज़ की सब तो बड़ी घाट है वो स्वच्छता दी। समझते हो बच्चों? तुसी अपनी स्टेज विच बस ये दो चीज़ां कर लो, समानता दी सोच रखो, स्वच्छता प्रैक्टिस करो, तो तुसी आई एम श्योर आने वाले 5 साल 6 साल ही इस देश में काफ़ी बड़ी एक रेवोल्यूशन आते देखोगे। इस दी सानू थोतों लोड़ है, तुसी इस देश के भगत सिंह बन जाओगे। अज साडे देश नू इस तरह के भगत सिंह की लोड़ है। So thank you very much dear students for the patient listening। और मैं डेफिनेटली चाहती हाँ कि तुसी आज ये प्लेज लो। बस एक गल हमेशा याद रखना, जो मर्जी हो जाए ये देश थोड़ा है, ये देश इसलिए खूबसूरत है, इसलिए इज्जत का एक बहुत बड़ा थोड़े लिए थोड़ी इज्जत का एक प्रतीक है। वो क्यों है? बिकॉज यू बिलोंग टू दिस कंट्री। तुसी इस देश के नागरिक हो, इसलिए इस देश बारे कभी भी कोई उंगली उठाए, कोई मजाक करे, इंडियन सॉइल, फॉरेन सॉइल, इंडियन फॉरेनर, ऑलवेज स्टैंड अप एंड से नो माई कंट्री इज़ नॉट बैड। मेरी कंट्री बहुत कुछ है, असी मेहनत कर रहे हैं, असी तरक्की कर लेनी, असी अगे चले जाना है। वेरी सून वी विल बी अ डेवलप्ड नेशन। सो लव योर कंट्री, हैव नेशनल प्राइड एंड वर्क फॉर योर कंट्री every single day, every single minute। This is my only message to you, dear students. With this, thank you so much. Jai Hind. Thank you, ma'am. We are all inspired by your great words. एक बार मैम के लिए फिर से तालियां हो जाएं।
Now I would like to invite our principal sir to Today we gather here, celebrate the Happy Republic Day. First of all, thank you very much प्रोफेसर डॉक्टर जसवीरा मिन्हास मैम, आप यहाँ पे आए, आपके वैल्यूएबल वर्ड्स जो हमारे बच्चों के लिए, जो उनके भविष्य के लिए और इस कंट्री के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। रिपब्लिक डे मैम ने जैसे बात की कि इस देश में शहीद हुए हैं भगत सिंह जैसे शहीदी, जिन्होंने देश को याद करवाने के लिए शहीदी प्राप्त की, उसके साथ साथ जैसे हमारे पास बड़ी प्राइड की बात है कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर जैसे जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया, उनके साथ उनकी पूरी टीम, एक बार उनके लिए प्लीज क्लैपिंग। मैम ने इक्वालिटी की बात की, भेदभाव नहीं होना चाहिए इसकी बात की, और जो सबसे पहले एक यहाँ पे हमने एक बच्चों ने राइट टू एजुकेशन की बात एक दिखाया, दृश्य दिखाया, उसके साथ साथ ड्यूटीज, मोर इम्पोर्टेंटली कि ड्यूटीज भी हमारी राइट के साथ साथ ड्यूटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी बात होती है तो राइट्स की बात जरूर आती है, ड्यूटी की बात थोड़ी सी पीछे रह जाती है। मैम ने बोला कि स्वच्छता होनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटीज हैं जिसको हम सामने रख के देश को स्वच्छ बना सकते हैं। AI का जमाना आ गया, हमारे बच्चों ने अभी जब बड़े होना है, अपनी किसी ना किसी प्रोफेशन में जाना है, उस प्रोफेशन में जाने के साथ साथ उनको AI के साथ भी जुड़ना पड़ेगा। स्कूल्स में हम भी बच्चों को उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। आज हमारे इर्द गिर्द जितने कंट्रीज हैं उसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो गई है, चाहे नेपाल लगा लो, बांग्लादेश लगा लो, पाकिस्तान लगा लो। बड़ी डीपली सोचने के बाद पता चलता है कि हमारे देश में एकजुटता कैसे है। ये एकजुटता ऐसी है कि जब हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, हमारे पास हमारे राइट्स आ गए, हमारी ड्यूटीज आ गई, और कितनी बड़ी सोच होगी उनकी जिन्होंने ये हमारे को आज से 1950 में हमारे को ये एक बुक दे दी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। तो उनको पता था कि ऐसा एक दौर आएगा जिसमें देश में काफी डिस्टर्बेंस होगी। इधर उधर आप देख रहे हो जो डिस्टर्बेंस हो रही है, ये डिस्टर्बेंस हमारे देश में नहीं हो पाएगी, नहीं होगी। उनकी सोच बहुत अच्छी थी। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूं कि मैम आप हमारे स्कूल में आए, आपने अपने वैल्यूएबल्स वर्ड बच्चों को बताए, और हम भी स्टाफ मेंबर्स, प्रिंसिपल, टीचर्स, आपके ये जो वर्ड्स हैं, जो वैल्यूएबल्स आपने बच्चों को बातें बताई हैं, ये बच्चों में अच्छे तरीके से बच्चों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। आपके ये वर्ड उनके घर घर तक पहुंचाएंगे, उनकी बुक्स में भी दिखाएंगे। थैंक यू। वंदे मातरम। थैंक यू सर। अपनी रूह के चालों का कुछ हिसाब करूं, मैं चाहती हूं चिरागों को आफताब करूं। जिनका खून वतन पर कुर्बान हो गया, मैं अपनी जान उन पर कुर्बान करूं। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। इसी के साथ सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामना। प्लीज मैम, काइंडली डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स टू द चिल्ड्रन प्लीज।